نظر ڈال لیتے ہیں خبر وہی انداز میں ہمیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ایران جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ تہران امریکہ کے ساتھ ڈیل کے لیے بےتاب ہے اور ہم اس کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو وینزویلا میں کیا۔ ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، یہ ان کی جانب سے کہا گیا۔ گفتگو انہوں نے کی اور آپ کو سنوائیں گے آگے بھی پروگرام میں چل کر کے ان کا گفتگو میں کیا کہنا تھا، لیکن جی ایک بات کلیئر ہے، وہ ظاہر ہے ہم روز بات کرتے ہیں، بڑے فخر سے بات کرتے ہیں، فیل ریئلی پراؤڈ ٹو سے کہ پاکستان کا جو رول ہے ان میڈیشن وہ بڑا ہم دیکھتے ہیں ایکٹیو رہا ہے، ایکٹیو ہے۔ امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ ناظرین، فیلڈ مارشل عاصم منیر اہم ترین سرکاری دورے پر ایران میں موجود ہے، جہاں وہ ایرانی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے، اور اس کے علاوہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی تہران میں پہلے سے ہی موجود ہے، پھر انہوں نے اپنا دورہ ایکسٹینڈ کیا تھا۔ بالکل، آگے جا کے بتائیں گے کہ مہنگائی کے ستائے عوام کو حکومت نے کچھ ریلیف دیا ہے۔ پیٹرول 6 روپے اور ڈیزل 6 روپے 80 پیسے سستا ہو گیا ہے جناب، جس کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 403 روپے 78 پیسے جبکہ ڈیزل 402 روپے 78 پیسے میں فروخت ہو رہا ہے۔ بالکل جی، اور ظاہر ہے آج جب میں اور کیتھرین بھی آ رہے تھے تو بہت ہی زبردست موسم ہمیں ملا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ لوگوں تک موسم کا احوال نہ پہنچا ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بارش ہوئی ہے جس سے موسم خاصا خوشگوار ہوا ہے، اور آج بھی پنجاب کے بالائی و وسطی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے، تو ویدر اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ لیکن جی سب سے پہلے جو ہماری امپورٹنٹ ٹاپ سٹوری ہے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ امریکہ ایران مذاکرات کی ممکنہ ناکامی پر دوبارہ حملوں کا خدشہ ہے۔ یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن کریٹ ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے کہ معاملات اس جانب بڑھیں، کیونکہ جو رول ہے پاکستان وہ بھی اپنا میڈیشن میں نبھا رہا ہے، اس کے علاوہ جو مذاکرات کی میز ہے اس سے پہلے بھی سجی ہے۔ لیکن امریکی میڈیا کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران جنگ پر اہم مشاورت شروع کر دی ہے۔ امریکی صدر نے سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ ہنگامی ملاقات کی، جس میں نائب صدر جی ڈی وینس، وزیر دفاع، CIA ڈائریکٹر اور دیگر حکام بھی اس اہم ترین ملاقات میں میٹنگ میں شریک ہوئے، اور امریکی حکام کے مطابق صدر ٹرمپ ایران پر حملے کے آپشنز پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ یہ کوٹ کرنا ایک ظاہر ہے بڑا ہی ایک الارمنگ بھی ہے، لیکن the situation is that کہ ابھی تک جو امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ سیریسلی اس پہ غور کر رہے ہیں۔ مذاکرات میں پیش رفت کی صورت میں فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے جو آپشن ہے مذاکرات کا، جو آپشن ہے پیس کا، وہی پرائیورٹی رہا ہے دونوں ملکوں کے لیے۔ ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی ایران کی جانب سے بھی امریکہ کی جانب سے بھی بارہا یہ موقف دہراتا رہے وہ کہ جتنا ہو سکے گا تو پیسفلی معاملات حل ہوں گے، لیکن آن دا کنٹری کچھ یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہے جو آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ بالکل، دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریب سے خطاب بھی کیا ہے اور خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا ہے کہ ایران جنگ جلد ختم ہو جائے گی، تہران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ مزید اس پر کیا کہا ہے آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ What we've done in Venezuela, you see, what we've done to Iran. Iran is dying to make a deal. We'll see what happens, but we hit them hard, and we had no choice because Iran cannot have a nuclear weapon. They cannot have it. تو سمانے مسلسل پل پل جو تمام تر ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے مسلسل اپنے ناظرین کو اپڈیٹڈ رکھا ہے، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران روانگی سے کی خبر بھی سب سے پہلے سمانے بریک کی، اور اس حوالے سے بتایا ناظرین کو جو رول ہے میڈیشن کا پاکستان کا وہ ظاہر ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ایک بڑا ہی ہسٹورک میز سجائی گئی کہ آفٹر 4 ڈیکیڈز ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور ایران ایک میز پر بیٹھے تھے جب اسلام آباد ٹاکس ہوئی تھی۔ میں اس کا حوالہ دے رہی ہوں، اینڈ جیسے کہ ہمارے پاس سینئر رینک پرسن ندیم ملک صاحب نے بھی ابھی آپ نے سنا کچھ لمحات پہلے کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ لیٹر آف انٹینٹ پر ہو سکتا ہے کہ سائن ہو، جو کہ اٹ سیلف پاکستان کے لیے انشاءاللہ اگر یہ ہوتا ہے تو کتنی بڑی اچیومنٹ ہے، کتنا سگنیفیکنٹ، کتنا ہسٹوریکل اور تاریخی رول ہے جو پاکستان نبھا رہا ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نبھا رہے ہیں۔ تو پاکستان کا خطے میں قیام امن کا مشن اب تو ظاہر ہے گلوبل دنیا کے سامنے ہے، سب تعریف کر رہے ہیں۔ سپاہ سالار صفاتی محاذ پر کافی سرگرم ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ثالثی کی کوششوں کے سلسلے میں تہران آمد ہوئی۔ یہ ویجولز آپ دیکھیں سائڈ بائی سائڈ، ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے پرتپاک استقبال کیا، اس ویجولز میں نظر آ رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دورہ ایران میں بہت زیادہ کچھ اہم ملاقاتیں ہیں جو کہ شیڈیول کا حصہ ہیں، اور اب مذاکرات میں اہم پیش رفت بھی متوقع ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे, तो एक टॉप नोच लीडरशिप से मुलाकातें भी होंगी। तो आपको इसी के साथ ये भी बता देते हैं कि इन मुलाकातों में मुस्तकिल जंगबंदी और ईरान अमेरिका डील के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। यस, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूरत हाल है, और इसी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तजज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया देने के लिए, एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे ईरान को आप किस हद तक एक गैर मामूली और अहम समझते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इसे एनालाइज करने की जो हम भी कोशिश कर रहे हैं, तो एक ही हम ये समझते हैं कि एक प्रेसिडेंट और एक बहुत ही अहम तरीन हिस्टोरिक ये दौरा है, और इसमें अगर कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें सामने आती है तो जो पाकिस्तान का रोल है वो और खुलकर सामने आएगा दुनिया के सामने। रहीम, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम का समा आप देख लें, मैं मरी में हूँ और इस टाइम पे जैकेट पहनी हुई है, तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, ये समा बंधा हुआ है समा के ज़रिए। और अब्दुल्ला साहब, अगर आज मौसम खुशगवार नहीं होता लाहौर का तो हमें थोड़ी सी आपसे जेलसी ज़रूर होती जी देखिए, मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इसी तरीके से, जिस तरह से आज पुररौनक दिन है और ख़ूबसूरत समा है, मेरा ख़्याल है कि इसी तरीके से पाकिस्तान के लिए खैर और बरकत, खुशहाली इंशाअल्लाह ताला ये आने वाली है। फील्ड मार्शल साहब जो वहाँ गए हैं, ज़ाहिर है पहले 2 दिन मोहसिन नकवी साहब जो है वहाँ मौजूद थे, और हफ्ते में 2 दौरे उनके हो चुके थे, जिसके अंदर अहम तरीन उनकी जो मुलाकातें थीं, जहाँ उनकी सिविल लीडरशिप से मुलाकात हुई, वहीं उनकी मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकात हुई, क्योंकि इस टाइम पे जंग है, और जंग के अंदर ज़ाहिर है कि एक उनकी जो मिलिट्री क़यादत है उसका अहम तरीन रोल है। ख़ास तौर पे ईरानियन रेवोल्यूशनरी जो रिपब्लिकन गार्ड्स हैं, उनका एक IRGC का एक बहुत बड़ा किरदार है। तो उनकी लीडरशिप से मुलाकात के बाद फील्ड मार्शल साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए हैं, और मेरे ख्याल में कि एक मामला तकरीबन तय पा चुका है। इसके अंदर ज़ाहिर है आयतुल्ला मुज्तबा ख़ामेनाई की जानिब से भी एक सख्त बयान आया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम अपना यूरेनियम किसी सूरत बाहर नहीं जाने देंगे। ये तो उनका मेरे ख्याल में फ़ैसला है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब देखें, सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास वक्त की भी किल्लत है, और मेरे ख्याल में उनके पास खोने के लिए भी बहुत कुछ है। ईरान के पास यकीन मानिए कि उन्होंने बहुत कुछ गंवा दिया है। $270 बिलियन का नुकसान कोई कम नहीं होता। उनकी जानें भी गई, उनका माल भी गया, उनकी जो एक तेल की तनसीबात थी उनके ऊपर नुकसान पहुंचा, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। लेकिन इसके बावजूद वो आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर एक मुकम्मल कंट्रोल रखे हुए हैं। अगर एक तरफ अमेरिका जो है वो वहाँ बाहर नहीं जाने देता, तो ईरान अंदर नहीं आने देता। ये बड़ी अजीब सी कैफियत है। लेकिन इस सब के अंदर हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका ज़्यादातर ये धमकी दे रहा है। मेरे ख्याल में जिस तरह से माजी में पाकिस्तान ने ये प्रीएम्प्ट किया कि जब तहजीब से मिटाने की बात की, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब ने मौके को समझते हुए एक मेरे ख्याल में एक्सक्यूज़ पैदा किया, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको, जो मैं समझता हूँ बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान के ट्वीट को मुकद्दम जाना और सीज़ फायर 7 अप्रैल को कर दिया। बिल्कुल 7 अप्रैल को हमीद गुल साहब, बिल्कुल सीज़ फायर हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के सालसी का किरदार किस तरह से उभर कर सामने आया। लेकिन जब भी कोई अच्छा काम करता है तो डेफिनेटली उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान भी अब बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा, पूरी दुनिया देख रही है। तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सफारती चैलेंज एक तो आप क्या देखते हैं, और दूसरा ईरान और अमेरिका में मुआहदे के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को आप खित्ते में एक नई स्ट्रेटेजिक हैसियत की अलामत समझते हैं? देखें, अलामत तो बन चुका। पाकिस्तान एक नया ताकत के तौर पर उभर के आया। अब दुनिया इसको मिडल पावर के तौर पर देख रही है, लेकिन मैं समझता हूँ ये मिडल पावर नहीं, बल्कि आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर है। और आपको और हमें ये फ़ख्र है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसका एक फ़ौजी बेस अदर दैन पाकिस्तान भी मौजूद है, यानी कि सऊदी अरब में। आज की खुशखबरी यह है कि कुवैत और सऊदी अरब ने यह फ़ैसला किया है कि वो अब अपने ऑयल रिजर्व्स पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद के अंदर रखेंगे, जिससे पाकिस्तान के मामलात को बहुत बेहतर हो सकते हैं। ये खुशखबरी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अब आपको जहां स्ट्रेटेजिक फ़ायदे आ रहे थे, वहीं अब आपको इंशाल्लाह मुआशी फ़ायदे आना शुरू हो जाएंगे। जहां तक आपने बात की कि चैलेंजेस के, देखिए चैलेंजेस होते हैं। आपने देखा नहीं कि नेतन्याहू को कितनी तकलीफ हुई है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सिफारत की वजह से अमेरिका और
इसराइल के दरमियान रखना पड़ चुका है। ये पाकिस्तान की सफारतकारी की मेरे ख्याल में एक अजीम मिसाल मौजूद है। इसी तरीके से भारत को जो है वो तकलीफ हो रही है। जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के हवाले से बातें कही हैं, इससे तो उनकी अननर्वसनेस जो है वो नर्वसनेस जो है वो सामने नजर आ रही है। तो अननर्व हो चुके हैं वो लोग। इसका मतलब बड़ा वजाहत से है कि पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस जो जहां तक हैं वो सिफारती सतह के ऊपर यकीनन ये एक चैलेंज है। लेकिन और माशाल्लाह अब्दुल्ला साहब, हम देख रहे हैं कि चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी उससे ज़्यादा है। जैसे कि ऑयल रिजर्व्स का अपनी गुफ्तगू में आपने खुद जिक्र किया। मैं चाहूँगी थोड़ा मुफस्सल अंदाज में आप इस हवाले से बात कर सकें कि देखिए सिक्योरिटी डिप्लोमेसी में तो ज़ाहिर है पाकिस्तान इस वक्त सर फहरिस्त है, कामयाबी भी समेट रहा है, लेकिन इसके और हम देखेंगे आगे चल के कि मौशी तौर पर और सियासी लिहाज से क्या असरात आएंगे, क्या सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं जो हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इकोनॉमिक स्ट्रेंथन होना भी एक बहुत अहम तरीन फैक्टर तो है ना। देखें, इकोनॉमी का जहाँ तक ताल्लुक है ये चंद चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। पहली बात यह है कि आपका महलो वकू क्या है, दूसरी बात यह है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, और तीसरी बात यह है कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं। आइए इस पर ज़रा निगाह डाल लेते हैं। अगर एक तरफ सेंट्रल एशिया के 80% तकरीबन दुनिया में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सेंट्रल एशिया में मौजूद हैं, पाकिस्तान उसके बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है। दूसरी जानिब जो है वो गल्फ़ के रिसोर्सेज हैं, ऑयल और गैस के, जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लग रहे हैं। तीसरी जानिब जो है साउथ ईस्ट एशिया के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, और ख़ुद पाकिस्तान में 68.4% तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह एक नौजवान नस्ल है जिसको जेन ज़ी कहा जाता है, और इनके लिए मौक़े ही मौक़े हैं। अब और अगर पाकिस्तान के मादनियात की बात कर ली जाए तो $6 ट्रिलियन के हमारे पास सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान के अंदर मादनियात मौजूद हैं। तो ये आप देख लीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं। अच्छा, फिर जो हमारी सिक्योरिटी शील्ड है वो इतनी मजबूत है कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, बड़ी जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर हैं, और फिर अब जो डिप्लोमेसी के अंदर कामयाबियां हैं, अब इसको मेरे ख्याल में हार्वेस्ट करने का टाइम आ चुका है। अब आप देखें कि कैसे ये इन सारी चीज़ों को आपस में ब्लेंड कैसे करना है। ब्लेंड ऐसे करना है कि पाकिस्तान ने सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। जो सी पैक है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, जिसके नतीजे के अंदर हमारा जो बॉर्डर्स हैं और ख़ास तौर पे हमारे जो पोर्ट हैं, चाहे वो गवादर है या कराची है, वो इंशाल्लाह ताला अपने ब्लॉसम के ऊपर होंगे, जिससे पाकिस्तान का जो मुआशी पहिया है वो एक मजबूती से चलना शुरू हो जाएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट इसके अंदर बात जो है वो आप अगर देखें कि जहां हमारे तकरीबन 6 और ऐसे ममालिक हैं, जिनमें से एक नॉन अरब मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब की तर्ज के ऊपर दिफाई मुआहदा करना चाहते हैं। अमेरिका ने दुनिया के अंदर अपने बेसेस जहां जहां बनाए वहां की मईशत को घसीट के अपने मुल्क में ले आया। तो पाकिस्तान में जहां अब ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जिनका मैंने जिक्र किया, यानी कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपके पास बॉर्डर है, आपके पास डीप सी पोर्ट हैं। अब आप मुझे बताएं आपको कौन रोकने के लिए तैयारी? अच्छा, ये चलें आप इसको छोड़ दें, माजी के अंदर चलते हैं। माजी के झरोकों में जाएं तो पता चलता है कि हम पाकिस्तान टूट भी गया था, लेकिन आप एशियन इकोनॉमिक टाइगर थे। आपकी इकोनॉमी जो थी वो साउथ कोरिया से, चाइना से, इंडिया से और जापान से बेहतर थी, यू नो दैट। और ये आपका जो ग्रोथ रेट था तकरीबन 6.4% तक जो है 1991 तक चलता रहा। उसके बाद जाहिर है दहशतगर्दी शुरू हो गई, मामलात हो गए, मुश्किलात आ गई। अब्दुल्ला साहब के इंशाल्लाह ताला एक बार फिर पाकिस्तान, वैसे तो सिफाती मैदान हो, मिलिट्री मैदान हो, उसमें तो सर फहरिस्त है ही, इंशाल्लाह इकॉनमिकली भी जो चैलेंजेस पर ज़रूर काबू पाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। विश यू अ ग्रेट डे एंड अ ग्रेट वेदर। इसी के साथ ही जी हम एक ब्रेक हैं और ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ दीगर इशू से बात करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर वही। वेलकम बैक टू खबर वही। अंदाज ने हमें जनाब काली घटाएं, ठंडी हवाएं, बादल, पानी बरसाएं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम से मौसम हुआ औसम। आसमान पर अब भी बादलों का बसेरा है, मजीद बरसात का इम्कान भी है। अपडेट्स ले लेते हैं नुमाइंदा समा अंस जफर से। अंस, तो बताइए जी मौसम कैसा देख रहे हैं आप? गुड टू सी यू लाइक दिस, वरना तो बहुत ही स्कॉचिंग हीट में आप नजर आते हैं।
دھوپ اور جو سنشائن ہوتی ہے بالکل آپ کے چہرے پر ہوتی ہے, بڑا مشکل سے آپ ہمیں اپڈیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں جی, موسم کیسا ہے؟ واقعی اوسم ہوا ہوا ہے یا تھوڑی بہت دھوپ نکلی ہوئی ہے اب؟ جی بالکل, موسم واقعی اوسم ہے. لاہور میں گزشتہ کچھ روز سے رات کے اوقات میں تیز ہوائیں چلتی ہیں, ساتھ گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہوتی ہے, جہاں پنجاب کے دیگر علاقے اس وقت گرمی کی لپیٹ میں ہے, شدید گرمی کی لپیٹ میں, اور وہاں پہ دن کے اوقات میں ٹیمپریچر 40 سے اوپر ہوتا ہے. تو وہیں دوسری سائڈ پہ لاہور میں اگر دیکھا تو لاہور کا موسم کافی دلکش ہو چکا ہے. آج بھی صبح سویرے شہر کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش ریکارڈ کی گئی ہے. شہر کے بیشتر علاقے جن میں ماڈل ٹاؤن ہے, گارڈر ٹاؤن ہے, لیبرٹی چوک ہے, کلمہ چوک کی طرف ہے, یہاں پر کچھ دیر کے لیے بارش ہوئی ہے. بارش کے بعد شہر کا موسم کافی زیادہ سہانا ہو چکا ہے اور درجہ حرارت میں بھی کمی آئی ہے. گرمی کی مکمل طور پر چھٹی ہو گئی ہے اور اس وقت بھی شہر کا ٹیمپریچر 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات نے بتایا کہ لاہور میں زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر آج 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتے ہیں. دن بھر بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا. مزید بارش کی بھی توقع کی جا رہی ہے. دوسری جانب بارش تھوڑی تیز ہوئی تھی, اس کے بعد واسا کا جو محکمہ ہے وہ بھی حرکت میں آ گیا تھا. اور ایم ڈی واسا کی ہدایت کے مطابق جو تمام نشیبی علاقے ہیں وہاں پر تمام جو واسا کا عملہ ہے ان کو متحرک کیا, اور ڈسپوزل اسٹیشنز ہیں ان کو بھی ایکٹیو کر دیا گیا. دوسری جانب متحرک ہے جہاں پر نکاسی آپ کے انتظام کے حوالے سے, اور موسم بہت ہوا ہے. انس, جب بھی ہم یہ بات کرتے تو ہم کہتے ہیں ناشتہ آپ آرڈر کریں. میں اور کیتھرین پہنچ رہے ہیں, اور میں اس دوران سوچ ہی رہی تھی کہ آپ نے ابھی تک کہا کیوں نہیں, میری نظر پہلے ناشتے پہ ہوتی ہے. ڈانس وی آر کمنگ. لیکن جی یہ تو ہو گئی آج اور کل کے موسم کی بات جو ایز پریڈکٹڈ ہے, لیکن محکمہ موسمیات نے عید پر ملک بھر میں ہیٹ ویو کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے. پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کئی علاقے متاثر ہوں گے. جناب ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عرفان ورک کہتے ہیں کہ شہری عید پر صرف شام کے اوقات میں ہی باہر نکلیں. اس سے پہلے دن بھر آپ کوشش کریں کہ اوائڈ کریں. ظاہر ہے ہیٹ سٹروک بھی ہو سکتا ہے, خدا نہ خواستہ. تو لیٹس سی کہ ان کا کیا کہنا ہے, سنتے ہیں. جو ہیٹ ویو ہے یہ منڈے سے اس کا آغاز ہو جائے گا اور یہ مئی کے آخر تک جو ہے نا یہ ہیٹ ویو پاکستان کے مختلف علاقوں میں دیکھی جائے گی. اس میں جنوبی پنجاب کے علاقے ہوں گے اور بلائی علاقے بھی جو ہے نا اس میں شامل ہوں گے. اب اس میں جو درجہ حرارت ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ بعض جگہوں میں جو ہے وہ نارمل سے زیادہ ہوگا اور بعض علاقوں میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر سکتا ہے. اس میں جو سندھ کے بیشتر علاقے, بیشتر جو ڈسٹرکٹس ہوں گی سندھ کی, وہ ساری متاثر ہوں گی, جس میں سکھڑ سے لے کر نیچے ٹھٹھا بدین تک, اور اس کے علاوہ جو آپ کے دادو کے علاقے ہیں, شہید بے نظیر آباد کے علاقے ہیں, یہ تمام علاقوں میں جو ہے نا وہ شدید ہیٹ ویو ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہوں گے یہاں پر بھی, وسطی پنجاب کے علاقے میں, بلکہ پورا پنجاب جو ہے نا یہ ہیٹ ویو کی زد میں ہوگا. اس کے علاوہ جو جنوبی خیبر پختونخوا کے علاقے ہوں گے یہاں پر بھی ہیٹ ویو جو ہے نا ہوگی, اور اس کے علاوہ جنوبی بلوچستان کے علاقے اور وسطی بلوچستان کے علاقے, وہاں پر بھی بعض علاقوں میں شدید ہیٹ ویو دیکھی جائے گی. اب اس کے لیے احتیاطی تدابیر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں لوگوں کو چاہیے کہ خاص طور پہ جو ہے نا وہ ہلکے رنگ کے کپڑے پہنے اس میں, اور مشروبات کا زیادہ استعمال کریں, اور جو ہے خاص سن شائن جو ہے وہ ہوتا ہے 10 بجے سے یا 11 بجے سے آن ورڈ, جو 4 بجے تک جو ہے دن کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں جو ہے نا وہ دھوپ میں کم نکلیں. عید قربان میں اگر لوگ جو ہے نا وہ سیر و سیاحت کے لیے بھی نکلتے ہیں تو اگر وہ باہر کسی تفریحی مقامات پر یا پارکس میں یا کہیں اور جانا چاہتے ہیں تو وہ شام کا وقت منتخب کریں یا رات کا وقت, یعنی کہ ارلی نائٹ میں جو ہے نا وہ سفر کریں. جو ہمارے بالائی علاقے ہیں یا ناردرن ایریاز ہیں جہاں پر گلیشیئرز ہیں وہاں پر نارمل سے زیادہ ٹیمپریچرز تو ہوں گے. اس سے ایسا ہوگا کہ آپ کا جو دریاؤں میں پانی کا بہاؤ جو ہے نا اس میں اضافہ ہونے کا ہے اندیشہ. تو جناب یہ سارے پریکاشنز آپ کو بتا دیے ہیں, آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے اور بہت دیکھ بھال کر کے. اچھا جی, آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورے پر چین روانہ. وزیر اعظم کی چینی صدر وزیر اعظم سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں, اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی تقریب میں بھی وہ شرکت کریں گے. اس سے پہلے بھی کچھ تقاریب ہم نے یہاں بھی دیکھی تھی. وفد میں کون کون شامل ہے, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وفد کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعظم کے ساتھ اسحاق ڈار دیکھے جا سکتے ہیں, حسن اقبال, عطا اللہ تارڑ بھی روانہ ہوئے ہیں. اور یہ ویجولز بھی ہیں. وزیر اعظم سی پیک فیز 2 کے تحت جو منعقدہ بزنس فورم ہے
उसमें शिरकत करेंगे, ये उनकी मसरूफियात होंगी। और दौरा चीन, $5 अरब के 100 से ज़ायद समझौतों पर दस्तखत होने का भी इस अहम तरीन दौरे में इम्कान है। और 90% बिजनेस टू बिजनेस और 10% गवर्नमेंट टू बिजनेस मुआहदे होंगे। ज़राए अभी तक इस हवाले से ये बता पा रहे हैं मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब 24 मई को होगी। तो ये विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, वज़ीर आज़म और वफ़द की रवानगी के ये विजुअल्स हैं और ग़ालिबन शज़ा फ़ातिमा साहिबा भी नज़र आ रही हैं हमें। बिल्कुल। तो वफ़द में आप देख सकते हैं मौजूद हैं अलविदा यानी कि रवानगी के ये मनाज़र हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ये जब वो तैयारे की ज़ीने ऊपर जाते हुए हम देख सकते हैं और उस वक्त उन्होंने वेव किया रवानगी के मनाज़र, और वफ़द भी उनके साथ मौजूद है। वफ़द में अताउल्लाह तारर मौजूद है, असर इकबाल मौजूद है और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी उनके साथ मौजूद हैं दौरा चीन के लिए। तो जो बात कर लेते हैं, मुल्क की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। वसाइल की कमी और सुस्त मुआशी तरक्की के बायस तालीम, सेहत और रोज़गार की मौजूदा मनसूबाबंदी नाकाफ़ी साबित हो सकती है। 2050 तक आबादी कहाँ तक पहुँचने का तखमीना है और इसके असरात क्या होंगे, इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान हमें बता रहे हैं। जी ज़हीर, बताइएगा। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 7% से जायद तो 40% से जायद आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, जबकि तेजी से बढ़ती आबादी का बम बड़े खतरात की नई घंटियां बजाने लगा। अगले 25 बरस में पाकिस्तान की आबादी 39 करोड़ तक पहुंचने का तखमीना, जबकि बढ़ती आबादी के लिए सेहत, तालीम, रोजगार और खुराक की फराहमी बड़े चैलेंज। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि प्लानिंग कमीशन और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने अपनी मुश्तरका रिपोर्ट में इंकशाफ किया है। UNFPA और प्लानिंग कमीशन ने 2023 से 2050 तक की आबादी का तखमीना जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान की आबादी मौजूदा रफ्तार से बढ़ती रही तो 2050 तक 62% इजाफे के साथ 24 करोड़ से बढ़कर 39 करोड़ तक पहुंच जाएगी। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क की आबादी 24 करोड़ 19 लाख है। अगर फैमिली प्लानिंग तेज़ भी की जाए तब भी 2050 तक आबादी 37 करोड़ से तजावज़ कर जाएगी। 2050 तक पंजाब की मजमूई आबादी 20 करोड़, सिंध की आबादी 9 करोड़ 12 लाख, पख्तूनख्वा की आबादी 6 करोड़ 80 लाख होने का तखमीना है, जबकि बलूचिस्तान की आबादी में 68% इजाफे की पेश गोई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की आबादी 23 लाख से बढ़कर 65 लाख तक पहुँचने का तखमीना है। आबादी के मूज और सैलाब से शहरी सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ने का खदशा है। 18 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद 14 करोड़ जाएगी, तो काम की उम्र की हद तक पहुँचने वाले अफराद की तादाद में 89% इजाफा मुतवक्के है, जो 13 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ हो जाएंगे। उनके लिए रोज़गार की फराहमी के लिए 6 से 8% माशी तरक्की दरकार है, जबकि मौजूदा शरह नमो सिर्फ 3.5% है। तो बड़े ही मुफस्सल अंदाज में क्या इंसाइट्स हैं आपने हम तक पहुंचाई। इस्लामाबाद के स्कूलों में अब स्टूडेंट्स को सिर्फ रिवायती इल्म नहीं बल्कि कंप्यूटर साइंस और कोडिंग की तालीम भी दी जाएगी। सेनेट ने इस हवाले से तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है और इस पर तलबा और असातिज़ा के क्या जज्बात हैं, अलीना शाहिद से उनकी रिपोर्ट में जान लेते हैं। ईवान बाला ने मुफ्त और लाजमी तालीम के तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दे दी। स्कूलों के निसाब में बड़ी तब्दीली होगी। कंप्यूटर साइंस और कोडिंग को लाजमी करार दे दिया गया। इस्लामाबाद के टीचर्स इसके लिए किस हद तक तैयार हैं और तलबा इस पर क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। बढ़ते हुए दौर में जब हम देखते हैं कि हर तरफ AI है, तो अगर आप जो है वो स्टैटिक वर्ल्ड में रहेंगे या स्टोन एज में रहेंगे तो आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे आप बच्चों को एक बहुत अच्छी लर्निंग दे सके। टीचर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो कि इसके बारे में अभी उनको इतने लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स का नहीं पता। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से भी हमारी टीचर ट्रेनिंग्स भी बहुत हो रही हैं, जिसमें हम टीचर्स को लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स से अवेयरनेस दे रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं। इसमें हमें स्किलफुल एजुकेशन दी जा रही है, इसमें हमें ये टेक्निकल एक सब्जेक्ट है, स्किलफुल एजुकेशन दे रहे हैं और आगे अगर हमें अपना कैरियर बनाना है तो हमें इस चीज़ पे थोड़ा रखना पड़ेगा। जदीद दौर में हर चीज़ में कंप्यूटर लाजमी हो गया है और ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। हम लोग अभी से ये स्किल बेस्ड जो है प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं और ये सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग कल आने वाले दौर के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। आने वाली फ्यूचर लाइफ में स्किल्स एजुकेशन के साथ साथ बहुत ज़रूरी हैं, तभी जाके हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन्हें यूज़ करेंगे और इससे हमारे आगे फ्यूचर जो है बहुत अच्छा जो है डेवलप हो सकता है।
राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2012 में तरमीम करके कंप्यूटर साइंस और कोडिंग को लाजमी करार देने का मकसद जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में तलबा को जॉब मार्केट के लिए तैयार करना है, क्योंकि अब सिर्फ पढ़ना लिखना काफ़ी नहीं। कैमरामैन अवैस काजी के साथ अलीना शाहिद, समा, इस्लामाबाद। जी जनाब, ईद कुर्बान में चंद रोज़ बाकी, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक लग गई है। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में सहराई जहाज तवज्जो का मरकज बन गए हैं। देव कामत और निराली सज धज वाले ऊंटों को देखने के लिए लोगों का रश लग गया है। कैथरीन अभी यही शिकवा कर रही थी कि मैं मंडी नहीं गई हूँ, तो कैथरीन मंडी आप तक आ गई है। रिदा सिंधु से मजीद बात कर लेते हैं। जी रिदा, दिखाइए मिस कैथरीन को मंडी फैसलाबाद की। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की झाल खानुआना मंडी में सहराई जहाज़ों की एंट्री हो चुकी है और इंतहाई खूबसूरत जो ऊंट हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं। व्यापारियों ने बहुत मोहब्बत से इन्हें पाला है। मुख्तलिफ रंग और नस्ल के ये ऊंट हैं जिनको खूबसूरत नक्शो निगार से भी सजाया गया है। मेरे साथ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डेरा इसमाइल खान से लाए गए हैं, तूसा शरीफ से, डेरा गाजी खान से, इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में लाए गए। बलोची नस्ल है, मुसखेल नस्ल है, मडेचा नस्ल है। ये 3 लाख से लेकर 7 लाख, 8 लाख, 14 लाख तक है। 14 लाख तक जो है वो इनकी कीमत जाती है मुख्तलिफ ऊँटों की। और ख़ास तौर पर बच्चे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं कि कुर्बानी के लिए जानवर जो है वो ऊँट ख़रीदा जाए और इसके साथ खासे मानूस होते भी दिखाई देते हैं। जी तो जी जनाब, ऊंचा कद, तगड़ी सेहत, चमकती आंखें, सियालकोट की मवेशी मंडी की भी आपको सैर करा देते हैं ताकि आपको कोई गिला ना रहे। ब्लैक टाइगर की बहुत धूम है और इस देव हैकल बैल को जो देखता है देखता रह जाता है। हम भी ये चाहते हैं कि हम भी देखें, आप भी देखें और देखते रह जाएं। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। स्यारंग, कद 6.5 फुट और वजन 40 मन। ये है सियालकोट का देव हैकल बैल ब्लैक टाइगर। जब ये चलता है तो मंडी में सबकी नजर ठहर जाती है। 35 से 40 मन इसका वेट है, 6.5 फुट इसका काद है, मुंह से फ्रेश 4 दांत हो रहा है। अभी भी इधर कस्टमर हैं जो 70-75 मुझे लगा रहे हैं, लेकिन मैंने फाइनल उनको बोला है 1 करोड़ का बछड़ा देना, इसके नीचे मैंने बछड़ा नहीं देना। मजबूत जिसामत, रोबदार चाल और खूबसूरत अंदाज ने इसे सियालकोट की मवेशी मंडी का सबसे मुनफरिद बैल बना दिया है। ये ब्लैक ब्यूटी है, बहुत ही खूबसूरत जानवर है। जो कोई भी लेगा अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी कबूल करे। मवेशी मंडी आने वाले ब्लैक टाइगर को खरीदें या ना खरीदें, सेल्फियां जरूर बनवाते हैं। शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। अब बात कर लेते हैं सरगोदा में खरीदारों की सहूलत के लिए मवेशियों के 10 सेल पॉइंट कायम कर दिए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से किस किस्म की सहूलियात दी जा रही हैं, जान लेते हैं नुमाइंदे नदीम खान से जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर सरगोदा के साथ मौजूद हैं। बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा करीब आते ही जिला भर में जो है मवेशियाँ मंडी सज गई हैं, लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। जिला इंतजामिया की तरफ से क्या वहाँ पे इंतजाम किए गए हैं, इस वक्त डिप्टी कमिश्नर सरगोदा हुसैन अहमद चोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। हमने जो अपने सेल पॉइंट्स बनाए, मवेशी मंडियाँ बनवाई हैं, वहाँ पे जानवरों के लिए चारे का इंतज़ाम, साफ़ पानी पीने का इंतज़ाम, इसी तरह जो व्यापारी हैं उनके लिए उनकी जानवरों की सेहत को चेक करने के लिए, ख़रीदारों की सिक्योरिटी की सहूलत के लिए पुलिस भी डिप्लॉय की है। और इसमें हम हर तरह का एक उसमें एंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं लोगों को, ताकि लोग वहाँ पे इंजॉय करें। रात के लिए लाइटिंग का भी इंतज़ाम है। सेल पॉइंट्स के अलावा कहीं पर भी जानवर फरोख्त करने पर सख्ती से पाबंदी है और ना ही कोई सरकारी फीस है, ना कोई इसकी अदायगी लेगा। अगर इसे ऐसा कोई लेता है तो उसके लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, उसकी फौरी तौर पर शिकायत की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दस्का की बात कर लेते हैं, जहाँ इंतजामिया की जानिब से आर्जी मवेशी मंडी तो लगा दी गई है, मगर वहाँ जो बुनियादी सहूलियात है उसका शदीद फुकदान है, जिसके बायस जो दूर दराज से आने वाले व्यापारी होते हैं काफ़ी परेशान नजर आते हैं। समा के नुमाइंदे उस्मान हैदर इस वक्त मंडी में मौजूद हैं, व्यापारियों के साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उस्मान, क्या कहना है व्यापारियों का?
हाँ जी बिल्कुल, ईद को चंद रोज़ बाकी हैं। डस्का इंतज़ामिया की जानिब से डस्का में मवेशी मंडी लगा दी गई है। दूर दराज से व्यापारी जो है वो अपने जानवर लेके डस्का मंडी में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो व्यापारी हज़रात हैं वो शदीद सहूलियात के फुकदान पर शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है? यहाँ पर पानी का बिल्कुल भी इंतजाम नहीं है। जानवर के पानी के लिए आज दिन को परमिट था, जिसकी वजह से कंटेनरों में पानी आया और जो पानी है वो शदीद गंदा था, उसमें रेत थी जो कि जानवरों के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। वॉशरूम के इंतजाम नहीं है और यहाँ पर जानवर के सही का इंतजाम नहीं है। आज बिल्कुल सहूलियात के फुकदान पर व्यापारियों का कहना है कि जो ख़रीदार हैं वो मंडियों में नहीं आ रहे। सहूलियात को बेहतर किया जाए ताकि व्यापारियों की मुश्किलात को कम किया जा सके। जी तो जनाब अब निकलते हैं मंडी से बाहर और जाते हैं एक रेस की जानिब। जान लड़ाओ, दौड़ लगाओ, सेहत बनाओ। शहर कायद में साहिल पर मैराथन का मिजाज शुरका ने 2 दरिया पर दौड़ लगाई। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा समा ज़ीशान मुगल से। जी ज़ीशान, ओवर टू यू, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के साहिल 2 दरिया पर, जहां अब से कुछ देर पहले जो है यहाँ पर हाफ मैराथन जो रेस है उसका इनेकाद किया गया है। बताया जा रहा है कि साल 2026 की ये पहली हाफ मैराथन रेस है जहां पर ये इसका इनेकाद किया गया है। इसमें ख़वातीन, इसके अलावा जो यंग यानी कि बॉयज़ हैं, उनकी बड़ी तादाद उन्होंने इसमें शिरकत की है। और इस वक्त हमारे साथ यंग जो एथलीट्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे। बताइएगा क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? बहुत कम देखा गया कि कराची में ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं। बहुत मज़ा आया हमने, हाँ 2-3 दफ़ा हमने ट्रेन किया है और बस हम मज़े में आए हैं। आप क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? बहुत मज़ा आया मुझे। मेरा फर्स्ट मैराथन था तो मुझे लगा कि मैंने आई डिड वेल फॉर माय फर्स्ट मैराथन। ठीक है, कराची में भी बहुत कम ऐसे इवेंट देखे जाते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? ख़वातीन को इनकरेज करने के लिए ख़वातीन को चाहिए कि वो ज़रूर इस तरीके के इवेंट्स में आएँ, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जब हम लोग आए हमें बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने न्यू चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। मैंने यहाँ पे न्यू फ्रेंड्स बनाए और वी हैड फन हियर। उनका भी ये कहना है कि जो यहाँ पर जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पर यहाँ पर पहुँचे हैं और इस हाफ मैराथन में हिस्सा लें ताकि उनके लिए सेहत के लिए भी मुफीद है। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया कि इसकी 4 कैटेगरी जो है वो यहाँ पर इस मैराथन की बनाई गई है, जिसके अंदर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इसके अलावा 21 किलोमीटर और साथ ही साथ 1 किलोमीटर की जो है वो रेस का इनेकाद किया गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी के सख्त जो है इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और ख़वातीन के साथ साथ जो शहरी हैं, दीगर जो गैर मुल्की अफराद हैं, गैर मुल्की जो बाशिंदे हैं, वो भी इस इवेंट को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी अच्छा जी, क्विकली प्रोग्राम में आगे बढ़ते आपको ये बताते हैं कराची में चाय के शौकीन अफराद के दिन का जो आगाज़ होता है ना वो भी चाय की चुस्की से होता है और रात का अख्ताम भी। और चाय कराची वालों का भी ऐसा ही हाल है, इसीलिए कैथरीन अभी शिकवा भी कर रही थी कि आप क्यों इतनी चाय पीती हैं, लेकिन हम क्या करें। तो लेकिन एंगल ऑफ द स्टोरी ये नहीं है, एंगल ऑफ द स्टोरी डिफरेंट है। जो खबर वही अंदाज न्याय की टीम ने आज आप लोगों के लिए निकाला है वो ये है कि जनाब होटलों पर मिलने वाली जो मुज़रे सेहत चाय है उसके बारे में आप जानते हैं? वो जो ये मज़े से हम देखते हैं पकड़ी होती है मुसलसल, जो इतनी झाग बनती हुई नज़र आती है, तो वो देखने में बहुत अच्छी लगती है, जायका बड़ा अच्छा लगता है, दिल को भाता है और नशिश बहुत अच्छी लगती है, चाय की कम फीस बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इस हवाले से वो कितनी मुज़रे सेहत है, शहरियों की इस हवाले से क्या राय है? इक़रा आवान ने बड़ी मेहनत से ये रिपोर्ट तैयार की है, आइए मिलकर देखते हैं। कराची वो शहर जहां ट्रैफिक रुक सकती है मगर चाय नहीं, जहां हर मुलाकात की शुरुआत भी एक कप से होती है और बहस का इख्तिताम भी अक्सर एक और चाय पर। गली के कोने से लेकर पोश इलाकों के कैफे तक शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला हो जहां चाय का होटल आबाद न हो। इसीलिए कराची वाले दिन भर लाखों कप चाय पी जाते हैं। नहीं पीती तो उस दिन पूरा दिन अच्छा नहीं गुजरता, क्योंकि चाय की इतनी आदत इंसान को लग जाती है, तो उसके बगैर वो आई थिंक लो भी फील करता है, क्योंकि चाय में काफ़ी ज़्यादा कैफीन होता है। इस वजह से 3 to 4 cups आई थिंक चाय के, बट या लाला की चाय इज़ वेरी मशहूर इन लाइक ऑल ओवर पाकिस्तान। कि जो ढाबे वाली चाय होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी तो होती है, लाइक इन टेस्ट बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो बहुत ही गलाजत तरीके से बनाते हैं चाय। कराची वालों की यही पसंद कहीं उनकी सेहत पर भारी तो नहीं पड़ रही, क्योंकि हर कप कड़क हो ज़रूरी नहीं कि महफूज भी हो। माहिरीन सेहत खबरदार करते हैं कि
शहर के कई होटलों पर नाकिस दूध, खुली चाय पत्ती और जरूरत से ज्यादा चीनी इस्तेमाल की जाती है। कई मकामात पर बार बार उबली हुई चाय भी फरोख्त की जाती है, जो वक्ती जायका तो दे सकती है मगर तवील मुद्दत में सेहत के लिए खतरा बन सकती है। गुर्दे के मरीज़ हैं, ख़ास तौर पे किडनी स्टोन्स जिनमें बहुत फ्रीक्वेंट देखा जाता है कुछ हमारी पॉपुलेशन में, उनके अंदर भी ये देखा गया है कि जो बहुत ज़्यादा पकी हुई चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा जब चाय को पकाया जाता है तो उसमें एक ऑक्सीलेट्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं। कराची में चाय सिर्फ पीने की चीज नहीं, ये शहर की रफ्तार का हिस्सा है। मगर माहिरीन सेहत कहते हैं अगर यही चाय गैर मयारी अज्जा और सफाई के बगैर तैयार हो तो सेहत के लिए खतरे की घंटी भी है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ इकरा अवानसामा, कराची। तो श्री, यही मेरा मौक़िफ़ था कि ज़रूरत से ज़्यादा जब आप कोई चीज़ इनटेक करते हैं और वो भी मुज़र सेहत हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो जो चाय के शौकीन हैं डेफिनेटली चाय पिए, लेकिन अच्छी वाली चाय पिए। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गुजरावाला में नौशहरा रोड पर कुर्बानी का बैल बेकाबू होकर फार्मेसी में घुस गया। बैल ने फार्मेसी में तबाही मचा दी, शीशे तोड़ डाले और दवाओं के रैक को भी ना बख्शा। फार्मेसी में मौजूद अमले और शहरियों ने भाग कर अपनी जान बचाई। कितने देखिए आप विजुअल्स एक तरह से। अच्छा जी, रावलपिंडी साहब को अपडेट करते हैं। 6 रोड पर मेट्रो बस में आग लग गई है और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया गया है। आर्जी तौर पर ट्रैक पर बसों की आमदरफ्त को मुअत्तल किया गया है। यासिर हकीम से बात कर लेते हैं। यासिर, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? देखिए, अब तक जो तफसीलात सामने आई हैं उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये बस इस्लामाबाद से मुसाफिरों को लेकर रावलपिंडी जा रही थी। जब 6 रोड के करीब पहुंची तो अचानक इसके पिछले हिस्से से आग भड़की, जिसने आनन फानन इस बस को अपनी लपेट में ले लिया। इस दौरान मुसाफिरों को वहां से निकालने का सिलसिला भी शुरू किया गया। फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमों को मौके पर तलब किया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जानिब से रेस्क्यू टीमें जो हैं वो ट्रैक पर पहुंची हैं, जिन्होंने आग बुझाने का अमल शुरू किया है। बस में आतिशबाजी के बायस धुएं के जो बादल थे वो दूर से देखे जा सकते थे, इसलिए फौरी तौर पर ट्रैक पर आमदोरफ्त को मुअत्तल करके मुसाफिरों और दीगर अफराद को जानिब जाने से मना कर दिया गया। ट्रैक की बस पे इस स्टेशन जिसका जो 6 रोड बताया जा रहा है वहां पर नीचे से मुसाफिरों के ऊपर जाने पर भी आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई है और फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमों ने आग बुझाने का जो अमल है। बस में बिलखुसूस कितने मुसाफिर सवार थे और क्या उन्हें बाहिफाजत निकाल लिया गया फौरी तौर पर? देखें, जो इब्तदाई इतलात सामने आई है उनके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि जितने मुसाफिर इसमें सवाल थे उन्हें निकालने की इब्तदाई तौर पर जो स्टेशन पर मौजूद अमला था उन्होंने भी कोशिश की और मुसाफिरों ने भी खुद वहां से निकलने की कोशिश की। कुछ मुसाफिर जो थे वो इमरजेंसी गेट से निकल भी गए। रेस्क्यू टीमें जो है वो मौका पर पहुंची हैं, जो इस बस पे से आग बुझाने के साथ साथ मुसाफिरों को निकालने की कोशिश कर रही है। अच्छा जी, और अब चूंकि ये वाला ट्रैक तो बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि ज़ाहिर है आमदरफ्त तो मुअत्तल की गई है। रेस्क्यू जो एहलकार हैं यासिर, वो क्या बता रहे हैं? क्योंकि आग की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा हम देख पा रहे हैं, विजुअल से मालूम हो पा रही है। कितना लगभग वक्त मज़ीद लग सकता है आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए, और क्या मज़ीद कुछ जो स्नार्कल्स वगैरह हैं आग को बुझाने के लिए वो भी मंगवाई गई हैं? तो यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद थे और जैसे कि हमें बता रहे थे कि रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई है, आग बुझाने का अमल शुरू किया गया है। ट्रैक पर बसों की आमदरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल है। बस इस्लामाबाद से रावलपिंडी जा रही थी। अब आपको बता देते हैं कि एक और आलमी एजाज़ जो है पाकिस्तान के नाम हो चुका है। खैबर की तहसील लंडी कोतल से ताल्लुक़ रखने वाले काशिफ शिनवारी ने मेक्सिको में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 17 गोल स्कोर किए हैं। आबाई गांव पहुंचने पर मुकामी लोगों ने काशिफ खान शिनवारी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। हमारे नुमाइंदे उमर शिनवारी से बात कर लेते हैं। जी उमर, बताइए। जी, मेक्सिको में स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले और पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करने वाले लंडी कोतल से ताल्लुक़ रखने वाले काशिफ शिनवारी लंडी कोतल आबाई गांव पहुंच गए। यहाँ पर जो शायकीन है फुटबॉल के और यहाँ पर जो मकामी लोग हैं उन्होंने यहाँ पर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस वक्त भी मेरे साथ काशिफ शिनवारी मौजूद है, इनसे पूछते कि आपका दौरा कैसा रहा? मैंने 17 गोल किया, मैंने नॉर्वे मेक्सिको कप अवार्ड हासिल किया और हुकूमत के चाहिए हम भी सपोर्ट करें, हमारे इलाके लड़के भी सारे सपोर्ट करें। बिल्कुल, काशिफ शिनवारी का कहना था कि यहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ हुकूमत को सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ से भी खिलाड़ी निकले और बिन-अक़वामी सतह पर मुल्क और कौम का नाम रोशन करे।
वेरी फेवरेट सेगमेंट सकाफत के रंग समा के संग। लाहौर म्यूजियम में कायम गंदारा आर्ट गैलरी बुद्धमन के कदीमी दौर की अक्कासी करती है। सदियों पुराने जो नायाब मुजस्मे हैं देखने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जह कर लेते हैं। रिपोर्ट देख लेते हैं वेल्डिंग एंड्रूज के। बुद्ध मत की तारीख और सकाफत को उजागर करती लाहौर म्यूजियम की गंदारा आर्ट गैलरी, जहां मौजूद सदियों पुराने मुजस्मे, मूर्तियां और नवादरात उसे सबसे मुनफरिद और नुमाया बनाती हैं। यहाँ मौजूद आसार कदीमा न सिर्फ मजहबी अहमियत रखते हैं बल्कि सयाहों के लिए तहकीक का अहम जरिया भी है। जो आर्ट मेला है, जो जिस तरीके से बनाया गया है, मैं खुद हैरान हूँ कि उस टाइम में भी ये सब कितने महारत से बनाया जाता था। बुद्धिज़्म के बारे में यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, उन्हें देखने का मौका मिला मुझे, उसकी हिस्ट्री को जानने का मौका मिला मुझे सकाफती कल्चर बहुत अच्छा लगा। बुद्धिज़्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चला, नॉलेज हमें हुआ कि उसकी वफ़ात कैसे हुई, उसकी फास्टिंग इंटरव्यू कैसे हुई, सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगा। गंदारा आर्ट गैलरी में 352 नवादरात महफूज किए गए हैं, जिन्हें 1864 से 1907 के अरसे में लाहौर म्यूजियम लाया गया। हमें इसमें 2-3 तरह की चीज़ें मिलती है। ज़्यादा स्कल्पचर हैं, जो बुद्धा के स्कल्पचर हैं। इसके अलावा हमें रिलीफ पैनल मिले हैं जिस पर डिफरेंट जो बुद्धा की लाइफ स्टोरीज हैं वो यहाँ पर डिपिक्ट हुई हुई हैं। गंदारा तहजीब के नवादरात और मुजस्मे देखने वालों को उस दौर में ले जाते हैं। गंदारा गैलरी में पत्थर पर तराशी गई तारीख आज भी जिंदा है, जो हमें अपने शानदार माजी को सीखने और उसे महफूज रखने का पैगाम देती है। कैमरामैन उमर अजीम के साथ वेल्डिंग एंड्रूज, समा, लाहौर।